Hello, hello students. Today we will discuss about the differentiability, right? So its definition is that let fx be a real valued functions defined on an open interval a comma b where c is element of a comma b, then fx is said to be differentiable or derivable if limit extends to c fx minus fc upon x minus c exist finitely, right? That is a condition of the differentiability. If limit such limit is exist, then we can say the given function is differentiable at the given point in open intervals a comma b, right? The limit is called the derivative or differentiable coefficient of the function fx at x equal to c and is denoted by f dash c or d over dx of fx at x equal to c। क्योंकि आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसे d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स से शो करते हैं, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर हम x इक्वल टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकलते तो वहां पर उस पॉइंट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारा there is a function is given you, there is a point a, right? So its left hand side, the coordinate of the its left hand side point are a minus h and f a minus h, and the coordinate of the point of its right hand side uh, are a plus h and f a plus h, right? तो यहाँ पर जो टेंजेंट है एट पॉइंट ए पर हमने ड्रॉ किया है, तो इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा, राइट हैंड स्लोप हो जाएगा आपका एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच एज एच टेंस टू जीरो और पी टेंस टू जीरो एंड सीकेंट ए पी टेंस टू ए एंड टेंस टू ए, and its right hand derivative is limit h tends to 0 f a plus h minus f a upon h. You have to remember it, limit h tends to 0 f a plus h minus f a upon h, right? Further, left hand derivative equal to limit h tends to 0 f a minus h minus f a upon minus h. Limit h tends to 0 equal to inside of bracket f a minus h minus f a upon minus h. Slope of the tangent at a when approaches from left f a minus h. So fx equal to differentiable at x equal to c if limit extends to fx minus c upon c exists, right? So limit x tends to c minus fx minus fc upon x minus c equal to limit h tends to 0 fc minus h minus fc upon minus h is called the left hand derivative, right? So we can say here it is important point here we have to watch in this box. Limit x tends to c fx minus fc upon x minus c, it is left hand limit, and equals right hand limit, it is limit h tends to 0 fc plus h minus fc upon h, right? If both limits are not exist, then we can say the given function is not differentiable, right? Differentiability in a set, a function fx defined on an open interval a comma b is said to be differentiable or derivable in open interval a comma b if it is differentiable at each point a comma b. A function fx defined on an open interval a comma b is said to be differentiable or derivable in open interval a comma b if it is differentiable at each point of a comma b. A function, second point, a function fx is defined on closed interval a comma b is said to be differentiable or derivable if f is derivable in the open interval, right? There are few notes we have to remember it, right? If fx and gx are derivable at x equal to a,
derivable or differentiable at x equal to, then the functions fx plus zx, fx minus zx, and fx into gx will also be derivable at x equal to a. If g is not equal to 0, then the function fx upon gx will also be derivable at x equal to a. अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशियल और डेरिवेबल है, तो उन दोनों का सम, उन दोनों का माय सब्ट्रैक्शन और उन दोनों का प्रोडक्ट भी डिफरेंशियल होगा एट एक्स इक्वल टू ए। अगर रेशनल फंक्शन है तो उसमें अगर डिनोमिनेटर जीरो ना हो तो वो उस पॉइंट पर भी डिफरेंशियल होंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए एंड जी एक्स इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए, then the product function fx equal to fx into gx can still be differentiable at x equal to a, right। एग्जाम्पल दिया हुआ है fx equal to x दिया हुआ है एंड gx equal to मॉडुलस ऑफ x गिवन है, राइट। Third, if fx and gx both are differentiable at x equal to a, then the product function fx equal to fx into gx can still be differentiable at x equal to a। एग्जाम्पल दिया हुआ है fx equal to modulus of x and gx equal to modulus of x, राइट। तो हमने 3 पॉइंट कर लिए हैं अभी। नेक्स्ट 4 पॉइंट, if fx and gx both are not differentiable at x equal to, then the sum of functions fx plus gx may be differentiable। एग्जाम्पल दिया हुआ fx equal to modulus of x and gx equal to minus modulus of x। if fx is differentiable at x equal to, then f dash x is continuous at x equal to। हमें इस थ्योरम का यूज करना है, राइट। मैं अभी जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसमें इस थ्योरम का यूज होंगे। Relation between continuity and differentiability. In the previous section we have discussed that if a function is differentiable at a point, then it should be continuous at that point and a discontinuous function cannot be differentiable। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और अगर डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, दिस राइट। तो ये थ्योरम है जिसको हम प्रूव तो करेंगे नहीं, सिर्फ हमें इसे अंडरस्टैंड करना है। और इसका कन्वर्स है, द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू, दैट इज अ फंक्शन मे बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट बट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट। लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल राइट है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी हो, राइट। a differential function may be continuous but a continuous function need not be differentiable, right, at that point। The function fx equal to modulus of x is continuous at x equal to 0, but it is not differentiable at x equal to 0 as shown in the figure you are watching here कि x equal to 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूस तो है क्योंकि ग्राफ आ रहा है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएशन वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड continuous। A function is differentiable at a point, it is necessarily continuous at that point, but the converse is not necessarily true, right। If a function is differentiable at a point, it is necessarily continuous at that point। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं है कि वो जरूरी है कि वो कंटिन्यूस ही होगा, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। मतलब अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल हो, राइट। और वी कैन से अगर एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू सी, सिंपल एज इट, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। मतलब अगर वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो जरूरी है कि वो उसी पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा, राइट। यहाँ पर एक लिया हुआ है, लेट एफ प्लस ए इक्वल टू पी एंड एफ लेफ्ट हैंड लिमिट है, या राइट हैंड लिमिट है, क्यू एंड पी आर फाइंड, देन पी इक्वल टू क्यू implies that f is differential at x equal to a and f is continuous at x equal to a। If p is not equal to q, then f is not differential at x equal to a। It is important to note that f may be still continuous at x equal to a, right। So in short we can say
अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो जरूर नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल ना हो। नॉट कंटिन्यूस तो नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। डिफरेंशियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा, अगर डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं होगा, राइट। और हो भी सकता है, रेयर केसेस है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। यू हैव टू रिमेंबर इट केयरफुली। If a function f is not differentiable but it is continuous at x equal to a, it is geometrically implies a sharp corner at x equal to a. If a function f is not differentiable but is continuous at x equal to a, then it geometrically implies that a sharp corner at x equal to a. तो उस पॉइंट पर एक शार्प कॉर्नर होगा अगर डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। सॉल्व करने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। Show that fx equal to x square is differentiable at x equal to 1, right, and find the value of f1. First of all we will find right hand derivative. Right hand derivative हो जाएगा हमारा लिमिट s टेंड्स टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट s टेंड्स टू 0 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस राइट हैंड डेरिवेटिव की, और अच्छी तरह से रिमेंबर करना है आपको। तो आर एफ डैश वन इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, राइट। अब हम फंक्शन में f1 प्लस एच निकालेंगे और f1 निकालेंगे, राइट। तो लिमिट हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि हमने x को 1 प्लस एच से रिप्लेस किया है। अब हम यहाँ पर f1 निकालने के लिए x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो h प्लस 2 बचेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो हमें 2 आएगा। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। और f1 माइनस h निकालने के लिए हम फंक्शन में इन प्लेस ऑफ x 1 माइनस h पुट करेंगे और f1 निकालने के लिए x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर माइनस h। तो ये हो जाएगा सॉल्व होकर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस 2 इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2, देन वी कैन से द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 and the value of f dash 1 equal to minus 2 and the value of f dash 1 equal to minus 2, right। next so that fx equal to greatest integer of x is not differentiable at x equal to 1, we have our f dash 1 equal to right hand derivative equal to limit h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 ओवर h, क्योंकि लिमिट प्लस h होता है, लिमिट हमारी 1 है तो ये f लिमिट प्लस 1 हो गया, राइट। फंक्शन की वैल्यू निकल ली f की और सॉल्व किया हमने। अब 1 प्लस h होता है तो हमें पता है कि 1 प्लस एच इक्वल टू 1 होता है और 1 की वैल्यू 1 होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंडीशन से, हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ से हमें लिमिट h ये मिल जाएगा 1 माइनस 1 ओवर h, तो ये 0 ओवर h हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करने पर हमें 0 मिल जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 ओवर माइनस h, तो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस 1 ओवर माइनस h। और 1 माइनस h के लिए 0 हो जाता है तो 0 माइनस 1 ओवर माइनस h, तो 0 अपॉन 1 इन्फाइनाइट हो जाएगा, इंडेटरमिनेट फॉर्म ग्रेट हो इसलिए इन्फिनिटी लिया। तो वी आर वाचिंग है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट है सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू दी 4/3 इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड एफ डैश 0। सेकंड पार्ट है सो दैट जी एक्स इज equal to x raised to the power 3/2 is not differentiable at x equal to 0. In both cases we have to find out a right hand limit and left hand limit and the value of the function, right hand limit and right hand derivative and left hand derivative, sorry, right hand we have to find out right hand derivative and left hand derivative. So in first part
we have to find लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव. सो आर एफ डैश जीरो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो ओवर एच. वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे और पुट करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच रेस टू द पावर वन बाई थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो ओवर माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच माइनस जीरो ओवर माइनस एच. तो यहाँ पर सॉल्व करके हो जाएगा लिमिट माइनस एच रेज टू दी फोर अपॉन थ्री ओवर माइनस एच. तो इट विल गिव यू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस फोर रेज टू दी पावर वन अपॉन थ्री. जब वैल्यू पुट करेंगे लिमिट एच इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर वैल्यू हमारी जीरो आ जाएगी. सो वी आर वॉचिंग हियर राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो. नाउ फॉर सेकंड पार्ट वी विल फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव. तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच माइनस एच जी जीरो अपॉन एच. वैल्यूज पुट करेंगे तो मिलेगा एच रेज टू दी पावर वन बाई टू. तो लिमिट अप्लाई करने पर जीरो आंसर आ रहा है. देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. राइट. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच रेज टू दी पावर वन बाई टू आ रहा है जो कि हमारा क्या हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा. तो यहाँ पर जीरो आ रहा है और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आ रहा है और कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं. तो right hand derivative or left hand derivative does not equal, so we can say fx is not differentiable at x equal to 0. right. हमारा next example है so that function fx equal to 1 plus x for all x is less than and equal to 2 and 5 minus x if x is greater than 2 is not differentiable at x equal to 2. We have to find out left hand derivative and right hand derivative in both cases. Right. So right hand derivative r f dash 2 equal to हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h. ये 2 लिमिट से आता है ऑलवेज. प्लस h आपको पता ही है. तो लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h माइनस f 2 ओवर h. तो लिमिट h टेंस टू 0 और x इज ग्रेटर देन 2 के लिए हो जाएगा 5 माइनस h x और x को हम लिमिट प्लस h से रिप्लेस कर देंगे. सॉल्व करने पर मिलेगा 1 माइनस 1. राइट. अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. राइट. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. सो लुक हियर लिमिट एल एफ डैश टू इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ टू माइनस एफ टू ओवर माइनस एच. वैल्यू फंक्शन की लगाएंगे तो हम मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच ओवर माइनस एच दैट इज 1. सो आर एफ डैश टू इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश टू. सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. let fx equal to 1 plus sin x, so where x is greater than equal to 0 and x is less than pi by 2. right. और 1 होगा fx equal to 1 होगा for x is less than 0 के लिए. हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है. तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 ओवर एच. तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच माइनस एफ 0 ओवर एच. सो इट विल गिव यू लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच साइन एच माइनस 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच ओवर एच इक्वल टू 1. राइट. तो अप्लाई करने पर हमें राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 ओवर माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एफ 0 ओवर माइनस एच. एफ माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे फंक्शन से तो ये माइनस 1 हो जाएगी. एफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 ओवर माइनस एच 0 आ जाएगा. राइट. सो वी आर वाचिंग राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 1 and left hand derivative is 0. So given function is not differentiable at x equal to 0. Now next question is that fx equal to mx plus c and f0 equal to f dash 0 equal to 1. Then find f2. right. Then find f2. Clearly from here कि f0 equal to m into 0 equal to c. f dash 0 equal to हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 ओवर h. तो लिमिट h टेंस टू 0 fh माइनस f0 ओवर h. सॉल्व करने पर हमें m मिला. तो हम दोनों वैल्यू को इक्वल लगाएंगे तो हमें m इक्वल टू 1 मिल जाएगा. राइट. सो fx इक्वल टू 1 डॉट x प्लस 1 दैट इज fx इक्वल टू x प्लस
1. सो देयरफॉर f2 इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 3. राइट नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, मतलब हमें शो करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, और उसके बाद वो होगा सो so that the function fx equal to x into sin 1 upon x for all x is not equal to 0, मतलब x is greater than 0 और x is less than 0 दोनों कंडीशन में यही फंक्शन होगा, और x equal to 0 और fx equal to 0 हो जाएगा. हम उसको करना है it is continuous but not differentiable at x equal to 0, राइट. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 ओवर h इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 अपन h माइनस 0 ओवर h, राइट. h से h कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h. तो 0 अप्लाई करने पर साइन इन्फिनिट हो जाएगा, जो डज नॉट एग्जिस्ट होता है. सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल. अब जब एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एफ एक्स कंटिन्यूस भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्योंकि हमें पता है एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट. लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 2. इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 2. जब कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशियल नहीं है तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले कंटिन्यूटी निकालनी है, उसके बाद हम डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे. वी हैव एफ टू इक्वल टू कितना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 पर 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स निकालेंगे. अब यहाँ पर हम वेरिएबल को एच टेंस टू 0 लिमिट प्लस एच से रिप्लेस करेंगे, वैल्यू के फंक्शन लगाएंगे तो हमें 0 मिलेगी, राइट. ऐसे ही हम एल एच एल निकालेंगे तो वैल्यू लिमिट हो जाएगी हमारी 0, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 पर हमारी 0 आ रही है. यहाँ हम वी आर वॉचिंग है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 इज 0, आर एच एल एंड एल एच एल बोथ आर इक्वल टू 0. सो वी कैन से द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, राइट. अब हमें कंटिन्यूटी तो मिल गया क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन अब हमें चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है. अब हम यहाँ पर ये वाली थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते एवरी कि कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशियल, क्योंकि हमें पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन need not to be differentiable function, right. So left right hand derivative equal to हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f और लिमिट प्लस h, जिस पर हमें डिफरेंशियल शो करना है वैल्यू ऑफ द पॉइंट 2 प्लस एच माइनस एफ टू ओवर एच. सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें -1 आ रही है. तो देन वी आर वाचिंग है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, right. Next. ओके, थैंक यू. इतना ही था डिफरेंशियलिटी के ऊपर, क्योंकि कभी कभी रेयर केसेस में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सॉल्व करा दिया. आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके सॉल्व कर लीजिए, का सफिशिएंट रहेगा. फिर आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कल से डिफरेंशिएशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसे थोड़ा बहुत, तो हम रिवाइज भी कराएंगे और इसे सॉल्व भी करेंगे. क्लियर? ओके, थैंक यू.